जय श्री कृष्ण। राधे राधे। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था आज मैं आपको राधा अष्टमी के बारे में बोलूँगी, तो आप ये मन से सुनना तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। आज भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी के त्यौहार मनाया जाएगा। शास्त्र के अनुसार इस दिन बहुत से लोग दोपहर 12 बजे तक व्रत करते हैं, तो कोई लोग पूरा दिन कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही व्रत का पालन करता है। बता दें कि कृष्ण जी की जन्म की 15 दिन बाद राधा रानी की जन्म हुआ था। राधा जी की जन्म को लेकर बहुत कथाएं प्रचलित है, तो आज हम आपको उनके जन्म से जुड़ी कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। धर्म जब संकट में होता है, भक्त जब कष्ट में होता है, तो भगवान बार बार आविर्भाव लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो जब कंस की अत्याचार इतना बढ़ गया था, तो भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव होने थे, वो पहले से ही ठीक थे कि उनके साथ राधा रानी भी आएंगे, लेकिन राधा रानी बैकुंठ से आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था, सरोवर था, कोमल था और भी बहुत सारा पुष्प था जो छोड़ के वो नहीं आना चाहते थे। तब भगवान ने उन्हें गिफ्ट में दिया, तब जाके वो राजी हुए। এবং তাকে উৎস করে তাকে কেন্দ্র করেই আমার এই চ্যানেল। তাই আজকের দিনটি হচ্ছে আমার কাছে ভীষণ 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 স্পেশাল। আর তোমাদের আমি আগের ব্লগে বলেছিলাম এই দিনটিতে রাধা রানীর আবির্ভাব তিথিতে একটি ব্লগ আসতে চলেছে, যেটা হবে ভীষণ ইন্টারেস্টিং এবং ইনফরমেটিভ। তাই তোমরা পুরো ব্লগটা স্কিপ না করে দেখতে থাকো, কারণ এটা তোমাদেরকে 100% আনন্দ তো দেবেই, এটা আমি গ্যারান্টির সাথে বলতে পারি। আর এখানে আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে যে ডিশটি শেয়ার করব সেটা রাধারানীর ভীষণ স্পেশাল একটি ডিশ। আমি জানি না আর কোনো চ্যানেল তোমাদেরকে এটা শেয়ার করেছে কিনা, কিন্তু আজকে রাধারানীর আবির্ভাব তিথিতে যদি আমি এই ডিশটি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার না করি, তাহলে মনে হয় এই ব্লগটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব রাধারানীর ফেভারিট ডিশ, যেটা তোমরা থাম্বনেল দেখেই বুঝতে যাবে। সেটা হচ্ছে বেড়া, যেটা ব্রজধামে বলা হয় বেড়া। আমরা হয়তো এখানে পকোড়া বা কচৌড়ি কিছুটা বলে থাকবো, কিন্তু ওখানে বলা হয় বেড়া, যেটা ওনারা বলেই থাকেন যে রাধা রানী কি বহুত প্যারি হ্যায় এই ডিশ। তো আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে এই ডিশটি শেয়ার করব, তোমরা দেখতে থাকো, ভীষণ ইন্টারেস্টিং। আর যেহেতু আজকে রাধারানীর আবির্ভাব তিথি, সেই সম্পর্কে কিছু কথা আমি তোমাদেরকে বলবো, তোমাদের সাথে শেয়ার করব। শেয়ার করে আমরা ইনভেস্ট হব আমাদের মাইথোলজির সাথে, আমাদের ঐতিহ্যের সাথে। তাই এই ব্লগটি তোমরা দেখতে থাকো স্কিপ না করে। আর আমার ইনফো বাড়ানোর জন্য প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে দাও আমার এই চ্যানেলটি রাধারানী রান্নাঘর। সঙ্গে আমি সুদীপ্তা। তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে যত পরিমাণ পারো শেয়ার করো, লাইক করো, কমেন্টস করো, তাতে এই পরিবারটি বড় হবে এবং আমার আরও অনেক কিছু শেয়ার করার আছে তোমাদের সাথে। তাহলে আমি সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো, আমি এগোতে পারবো। তাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল রাধারানী রান্নাঘর। সঙ্গে আমি সুদীপ্তা। আর রাধারানীর আবির্ভাব সম্পর্কে যদি তোমরা জানতে চাও, আর এই বেড়া নামক রাধারানীর প্রিয় ডিশটি সম্পর্কে যদি জানতে চাও, তাহলে অবশ্যই স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। এই ভিডিওটি তোমাদেরকে আনন্দ দেবে অন্তর থেকে, এইটুকুনি বলতে পারি। তাহলে চলো দেখতে থাকো আমার সাথে রাধারানী রান্নাঘর। সঙ্গে আমি সুদীপ্তা। বেড়া বানানোর জন্য আমাদের কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগছে সেটা আমরা দেখে নিই। প্রথমে বেড়াটা বানানোর জন্য আমাদের কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগছে ওটা আমরা দেখে নিই। তারপরে তার সাথে থাকে একটা সবজি, সেই সবজিটা বানানোর জন্য কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগবে সেটা আমরা তারপরে দেখে নেব। তো প্রথমে আমরা দেখছি বেড়া বানানোর ইনগ্রেডিয়েন্টস। চলো আমরা দেখে নিই। ময়দা, সুজি, আটা, ঘি,
লবণ, হিং, বেকিং পাউডার, খাবার সোডা, সাদা তেল, ময়দা, সুজি, এই লাগছে আমাদের বেড়া বানানোর জন্য। বেড়ার পুরটার জন্য আমাদের লাগবে উড়দ কা ডাল মানে বিউলির ডাল, আর হিং, সামান্য লবণ, ঘি আর সাদা তেল পুরের জন্য। আর সবজির জন্য আমাদের লাগছে আলু, টমেটো, দুটো টমেটো কাটা, জিরে, কাঁচা লঙ্কা, কসৌরি মেথি, হিং, লবণ, সাদা তেল সামান্য আর ঘি। এই হলো আমাদের বেড়া, তার পুর এবং তার সবজির ইনগ্রিডিয়েন্টস। এই হলো আমাদের ইনগ্রিডিয়েন্টস। এবার চলো আমরা দেখে নিই কীভাবে হচ্ছে প্রসেসটা। तो मैं पहले 1 कप मैदा, 1 कप आटा, हाफ कप सूजी, हाफ चम्मच 2 चम्मच बेकिंग पाउडर, हाफ चम्मच खाबर सोडा, थोड़ा सा नमक, घी और 2 चम्मच सादा तेल लेके इसको अच्छे से मल लेंगे। मलना बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से बेड़ा बनाने के लिए। देखिए जब ये मुट्ठी बन जाएगा और फिर दबाने से टूट जाएगा तो आप समझ लीजिए आपका मलना हो गया। फिर वार्म वाटर से इसको अच्छी तरह आटे की जैसे मलना है, नरम की तरह। फिर इसको नरम करके मलना है। फिर इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देना है। फिर गैस जला के कढ़ाई में थोड़ा सा घी और सादा तेल गरम होने पर उसमें उड़द का दाल दे के उसको ब्राउन करके फ्राई कर लेना है। उसके बाद उसको उठा के मिक्सी में ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। और फिर उसको थोड़ा सा हींग का छोंक लगा के अदरक मिला के उसको वार्म वाटर से मिलाना है सूखे करके। तो अब प्रोसेस देखते रहिए और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ राधा रानी की आविर्भाव की कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार मथुरा जिले की गोकुल मोहवन कस्बे के निकट रावल गांव में वृषभानु एवं कीर्ति की पुत्री के रूप में राधा रानी ने जन्म लिया था। राधा रानी के जन्म के बारे में ये कहा जाता है कि राधा रानी जी माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता ने अपने गर्भ में को धारण कर रखा था। उसने जोग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। श्री राधा रानी जी कलिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश की एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुए। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, मध्याह्न कल 12 बजे सोमवार का दिन था। उस समय राधा जी की जन्म पर नदियों का जल पवित्र हो गया, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठा और उनकी जन्म के साथ ही इस दिन की राधा अष्टमी रूप में मनाया जाने लगा। वृषभानु और कीर्ति ने बड़ा सुंदर उत्सव मनाया और अपनी पुत्री की कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गोए ब्राह्मणों को दान में दी। जब राधा रानी धरती में आविर्भाव होने के लिए मान गए थे तो वो कृष्ण भगवान के मांग क्या था कि जब भी वो जन्म लेंगे और आंखें खोलेंगे तब वो सबसे पहले कृष्ण जी को देखना चाहेंगे, उसकी आवाज़ सुनेंगे और फिर ही वो आंखें खुलेंगे। तो कृष्ण जी ने उनसे ये
बात मान ली थी और उनको ये कहती कि हाँ मैं ही तुमको पहले दिखूंगी, तभी राधा रानी जी इस धरती में आविर्भाव होने के लिए राज़ी थे। तो बेरा का पूर हमारा रेडी हो गया। अब हम बना लेंगे बेरा का सब्ज़ी। यो अगर आपको थोड़ा सा भी आनंद दे रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ये चैनल और लाइक करें मेरे इन्फो इंक्रीज़ करने के लिए। धन्यवाद। अब हम देखेंगे सब्ज़ी कैसे बन रहे हैं। तो कढ़ाई में हम दे दिए हैं घी और सादा तेल। इसकी गर्म होने के बाद हम लगाएंगे इसमें छौंक हींग की और इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, जिससे इसका फ्लेवर, स्मेल, रंग, टेस्ट बहुत निखर के आता है। और इसमें दे देंगे हम जीरा, आदा और हरी मिर्च का पेस्ट, 2 चम्मच पेस्ट, और यहाँ पे दे देंगे स्वाद अनुसार नमक। फिर इसको मिला के हम दे देंगे 2 कटा हुआ टमाटर, अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा नमक दे देंगे तो ये टमाटर पिघलता जल्दी है। फिर इसको हम ढक देंगे कुक होने के लिए। फिर इसमें हम दे देंगे उबला हुआ आलू, थोड़ा सा स्मैश करके। स्मैश करके आलू हम इसमें दे देंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक, हल्दी मिला के अच्छे से फ्राई करके गरम पानी इसमें डाल देंगे कुक होने के लिए। ये जो सब्ज़ी होता है ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनता, थोड़ा पतला होता है, जो हम सूप की जैसे बेरा के साथ खाते हैं। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालिए और अच्छे से उबाल लीजिए। फिर आपका रेडी हो जाएगा बेरा की सब्ज़ी। और पूर हमने बना लिया है। और वहाँ पे बेरा के लिए हमने जो बैटर को 1 घंटे के लिए ढक के रखा है, वो भी टाइम हो गया। तो हम वो अब बेल के उसमें पूर भर के लूची की तरह बेल के फिर उसको तेल में फ्राई कर लेंगे। तो हमारा तैयार हो जाएगा राधा रानी की फेवरेट डिश बेरा। और इसे हम घर पर भी फिर बना सकते हैं राधा रानी को भोग लगाने के लिए, और खाने के भी लिए घर में बना सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे हमारा 1 घंटा हो गया। फिर हम इसको थोड़ा सा मल लेंगे। फिर इससे लेप बना लेंगे। लेप बनाने के बाद इसको गोल गोल के बेल के इसमें पूर डाल के इसको अच्छे से सेट करके फिर इसको पूरी जैसे बेल के इसको तेल से फ्राई कर लेंगे। तो रेडी हो जाएगा हमारा बेरा। तो आप प्रोसेस देखते रहिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और उस तरफ राधा रानी की आविर्भाव के बाद उसका रूप इतना ज़्यादा अच्छा था। उसकी रूप की ज्योति से पूरा नगर ज्योतिर्मय हो गया था। सब उनको देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन सब देख रहे थे इतनी सुंदर सी बच्ची आँखें नहीं खोल रहा है। इस तरह राजा विश्वभानु और रानी जी को पता चल गया कि उनकी बेटी आँखें नहीं खोल रहा है, तो दुखी हो जाता है। कुछ समय पश्चात जब नंद महाराज की पत्नी जशोदा जी गोकुल से अपने लाडले के साथ वृषभानु जी के घर आती है, तब वृषभानु जी और कीर्ति जी उनकी स्वागत करती है। जशोदा जी कन्हा को गोद में लिए राधा जी के पास आती है। जैसे ही श्री कृष्ण और राधा आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आँखें खोलती है। अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को
देखने के लिए। वे एक तक कृष्ण जी को देखती है। अपनी प्राण प्रिय को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देख के कृष्ण जी स्वयं बहुत आनंदित होते हैं, जिनकी दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तचा तो मनुष्य के जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाती, वो है श्री राधिका जी, जब वृषभानु की यह साकार रूप से प्रकट हुई थी। और फिर यह ध्यान दीजिए, ये पूरी को हमको बहुत अच्छे तरह से तल लेना है दोनों तरफ। इसको थोड़ा खस्ता भजना फ्राई करना है, तो इसको ब्राउन करके हमको तल लेना है। और देखना है तलने के समय ये फट ना जाए, तो इसके अंदर की सब पूर बाहर आ जाएंगे। अगर ये बेलने के समय साइड से फटा हुआ है तो आप उसको हाथों से सील दीजिए, तो ये नहीं फटेंगे और परफेक्ट बनेंगे। तो देखिए हमारा बेड़ा कितना फूला हुआ बन रहा है। इस तरह से एक बेड़ा हमको 1-1.5 मिनट तक ही तल लेना है, उसमें भी हो जाता है। और हम फ्लेम को रखेंगे मीडियम से हाई गैस फ्लेम को रखेंगे। तो यहाँ पे रेडी हो गया हमारा बेड़ा और उसकी सब्ज़ी। मैं आपको थोड़ा सा हाथ से तोड़कर भी दिखा दूंगी उसके अंदर कितना खस्ता बना है और उसका अंदर पूर बिल्कुल भरा हुआ है। तो बहुत ही स्वादिष्ट है ये बेड़ा। आप एक बार घर में ज़रूर बनाइए, वो प्रसाद बनाइए राधा जी को इस राधा अष्टमी पे। तो हमने सुनी राधा रानी की आविर्भाव की कहानी। इस तरह सुंदर राधा जी की जन्मोत्सव की कथा है, जो हमारी किशोरी जी के यश का गाना किया जाता है, उस पर भगवान श्री कृष्ण साक्षात कृपा करते हैं। और जो इनकी प्रेम में डूबा रहता है वो सदैव ही निकुंजवास का अधिकारी बन जाता है। तो अगर आपका ये ब्लॉग, ये रेसिपी और राधा रानी की आविर्भाव कहानी अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी आनंद मिला हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ये वीडियो और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मेरी इंथू बढ़ेगी और मुझे आपको बहुत जानकारियाँ शेयर करनी है, तो मैं वो कर पाऊँगी। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों से शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो आपकी आशीर्वाद चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द নোটিফিকেশন। তো যাদেরই এই ব্লগটা ভালো লেগেছে প্লিজ লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো আর বেল নোটিফিকেশনটি বাজিয়ে রেখো পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য। এরপরেও আমি ইন্টারেস্টিং ব্লগ নিয়ে আসবো। তো ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে।